নমস্কাৰ সমুদ্ৰ দৰ্শকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নীলাচল ধামৰ পৰা পুনৰবাৰ DY365 আৰু মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে মন্দিৰত কেনেকুৱা পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোকে পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ অৰ্থাৎ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ এই সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবৰ বাবে আৰু মন্দিৰ পূৰ্বৰ দুৱাৰ বন্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াত কেনেকুৱাবিলাক পৰম্পৰা থাকে বা যি পৰম্পৰা সাৰোগত কৰি দূৰ দূৰণিৰ এতিয়া ভক্তই ইয়াত ভিৰ কৰিছেহি আৰু ইতিমধ্যে পূজা আৰম্ভ হৈছে ইয়াত মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হ'লেও যিসমূহ পূজা চলি থাকে দশম মহাবিদ্যাৰ স্থানত সেই পূজা ইতিমধ্যে কিন্তু আৰম্ভ হৈছে এই সকলোবোৰ দৃশ্য সামৰি বিশেষ 1 ঘণ্টা আজি আমাৰ সৈতে থাকক আমি কামাখ্যা ধামৰ পূৰ্বৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম অৰ্থাৎ দুৱাৰ বন্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেই পৰিৱেশটোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে পৰে পৰা কি এক পৰিৱেশ মা কামাখ্যা ধামত দূৰ দূৰণিৰ ভক্তই কেৱল নহয় বিভিন্ন আচলতে পৰ্যটক ইয়ালৈ আহিছে এই সময়ছোৱাত দৰাচলতে অম্বুবাচী কি কিয় এইকেইটা দিন মানিব লাগে কি হয় দৰাচলতে সকলোখিনি আচলতে পুংখানুপুংখভাৱে জানিবৰ বাবে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিছে আৰু বহু এনে সাধু সন্ত আহিছে যিয়ে আচলতে এই সময়খনত কিয় ইয়ালৈ আহিব লাগে তাৰ বৰ সুন্দৰ ব্যাখ্যা তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব পাৰে সেই বিষয়টোকে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম গুপ্ত পূজা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে কি এই গুপ্ত পূজা মা কামাখ্যালৈ আহিলেই যদি সিদ্ধি লাভ হয় তেন্তে এই গুপ্ত পূজাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা ক'ত কিয় পূজা কৰা হয় কেনেকৈ পূজা কৰা হয় সকলো সামৰি আজিৰ বিশেষ 1 ঘণ্টা কামাখ্যা ধামৰ পৰা লোকাৰণ্য আজি মা কামাখ্যা ধাম দেশী বিদেশী সাধু সন্তই ভিৰ কৰিছে মা কামাখ্যা ধামত কাৰণ কামাখ্যাত অম্বুবাচী মেলা নক্ষত্ৰৰ অৱস্থান অনুসৰি বহুমতী ঋতুমতী হোৱাৰ সময় এয়া সেই সময়ছোৱাত মা আজৰি হয় মায়ে সন্তানক সময় দিব পাৰে সেয়ে ভক্তৰ সমাগম চাওক কি দিন কি নিশা যিয়ে য'ত ঠাই পায় তাতেই শুই পৰিছে মুঠৰ ওপৰত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটিত অংশ ল'ব সকলোৱে দিনৰ কাৰণে মাৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ যাব আৰু চতুৰ্থ দিনা মাক বিশেষভাৱে স্নান কৰাই সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগে দুৱাৰ মুকলি হ'ব মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহৰ बाबा जी आप कहाँ से मैं ओम नमो नारायण जय माँ कामाख्या मैं महाराष्ट्र से हूँ पहली बार आए हैं नहीं मैं तो यहाँ पे 15 साल से आ रहा हूँ आपका ऐसे वर्ष कितना हुआ मतलब एज कितना हुआ अभी तो मेरा एज 32 एज है मेरा वाला इतनी कम उम्र में इस मतलब वेशभूषा में क्या मिलता है या क्यों आते हैं देखो यहाँ पे जो मिलता है वो तो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा इंडिया के बाहर भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ स्वयं महामाया शक्ति है यहाँ पे जो यहाँ पे यार मिलेगा वो तो दुनिया में किधर भी नहीं मिल सकता है इसलिए हम यहाँ पे दौड़े आते हैं माता के लिए हर अम्बुबाची के समय आते हैं या ऐसे भी नहीं जब माँ का बड़ा फेस्टिवल होता है अम्बुबाची मेला होता है माँ की शादी होती है देवधनी मेला होता है जब बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं उस टाइम हम हमेशा आते हैं यहाँ पे पोहन बिया में हाँ पोहन बिया में आता है सब जगह पे आता है अम्बुबाची मेला में देवधनी में आता है शादी में आता है माता के हाँ टाइम समय पे आते हैं हम यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं अभी हम तो यहाँ ऊपर अखाड़ा में खड़ा है हाँ क्या पूजा होता है क्योंकि मंदिर का द्वार बंद हो जाता है आप लोग तो बाहर घूमते रहते हैं बहुत मस्त मंदिर शायद आप गए हुए हैं लेकिन ये एक मंदिर है जहाँ मंदिर का द्वार जब बंद होता है तभी भक्तगण यहाँ आते हैं पूजा क्या होता है ध्यान कैसे होता है देखो यहाँ पे ऐसा होता है जब माँ के पट बंद हो जाते हैं उस समय में जो कोई तांत्रिक होते हैं वो सिद्ध होते हैं जो कोई भगत जगत होते हैं वो माँ के आराधना करते हैं यहाँ पे जो साल भर में कुछ नहीं मिलेगा वो या 3 दिन में वो प्राप्त करके चले जाएंगे ऐसा यहाँ पे बड़ा बड़ा तांत्रिक यहाँ पे माता जी को नतमस्तक होने के लिए आता है क्योंकि ये जो शक्ति है ये माता जी के और जगह पे शक्तिपीठ है अंग कट कट के गिरे पर यहाँ का जो महायुद्ध मुद्रा है वो तो जग में कहीं नहीं भी
ऐसे इसलिए हम बड़े बड़े तांत्रिक या छोटे या बड़े या कोई भी भगत हो जगत हो यहाँ पे आके आ जाएगा। और किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, ये सब कोई भगत होता है उसको किसी को बच्चा नहीं होता है, किसी को कुछ समस्या होती है, ये माँ 3 दिन में सब सॉल्व कर देती है यहाँ पे। पर ऐसे एक है कि जो आएगा भगत उसमें श्रद्धा बहुत होनी चाहिए, तो माता उसका काम 3 दिन में कर देंगी। ऐसा तो मुझे तो बहुत माता जी के विश्वास है और मैंने बहुत माता जी के विश्वास से पाया है बहुत मैंने ऐसा। মাৰ ওপৰত সেই বিশ্বাস আছে কাৰণে আচলতে এইদৰে সাধুসন্ত তেওঁ বৰ বেছি বয়সীয়া নহয়, আচলতে 32 বছৰীয়া এজন যুৱক, কিন্তু এই বেশভূষাৰে তেওঁ মাক আৰাধনা কৰিবলৈ আহিছে আৰু ইয়াত আহিলে সেই পৰম তৃপ্তি, জীৱনৰ সেই তৃপ্তিখিনি ইয়াত পায় কাৰণে এই 3টা দিনত এই উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহে বুলি কৈছে। আৰু মাক সেৱা পূজা কৰে জীৱনৰ একমাত্ৰ ব্ৰত বাবে এই দিনকেইটাত ইয়াত থকাটো তেওঁলোকৰ বাবে বৰ জৰুৰী বুলি তেওঁ ভাবে আৰু সেই বিশ্বাসক লৈয়ে এই সাধুসন্ত ইয়াত আহি ভিৰ কৰিছেহি। এইকেইটা দিনত মা কামাখ্যাক সাধনা কৰিম বুলি অহা সাধুসন্তসকলে বৰ সুন্দৰকৈ বৰ্ণাইছে। আচলতে নীলাচল ধামত 10 মহাবিদ্যাৰ স্থান কিয় হ'ল, 10 মহাবিদ্যাৰ পীঠস্থানসমূহ কি বা ইয়াত কিদৰে পূজা কৰা হয়, মা কামাখ্যাৰ 10টা ৰূপৰ সৃষ্টি কেতিয়া হ'ল, যদি সেই ৰূপকেইটাৰ কথা কওঁ বা কাৰ পূজা ইয়াত কিদৰে কৰা হয়, তেন্তে মা তাৰা, মা কালী, মা সুৰসী, মা ভুৱনেশ্বৰী, মা বগলা, মা ছিন্নমস্তা, মা ধুমাৱতী, মা ভৈৰৱী, এইদৰে প্ৰায় 10 স্থান আছে। সেই 10 স্থানত 10 মহাবিদ্যাৰ পীঠস্থান বুলি কোৱা হয়, য'ত আচলতে পূজা অৰ্চনা নিত হয়। বৰ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বৰ্ণাইছে আচলতে 10 মহাবিদ্যাৰ স্থান ইয়াত কিদৰে আৰম্ভ হ'ল বা 10 মহাবিদ্যাৰ পূজা অৰ্চনা কিয় ইয়াত হ'ল। সেই স্থানসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে দেখিছেনে? অকণমান ৰ'ব, আমি সকলোখিনি সামৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আচলতে ইয়াত মূলতঃ কি মন্দিৰত কি পূজা কৰা হয়। মা কামাখ্যাৰ উৎপত্তিৰ আঁৰৰ কাহিনী, পৌৰাণিক আখ্যা মা কামাখ্যাৰ ভক্তই জানে। দক্ষ ৰজাৰ মহাসমাৰোহৰ সেই যজ্ঞৰ কাহিনী আমি শুনিছোঁ, কিন্তু 10 মহাবিদ্যাৰ এই স্থানত মা কামাখ্যাৰ কোনকেইটা ৰূপক পূজা কৰা হয় দৰাচলতে? পিতৃ দক্ষৰাজে নিমন্ত্ৰণ নজনোৱাকৈয়ে সেই যজ্ঞলৈ যাবলৈ সতী দেৱীয়ে স্বামী মহাদেৱক কাকুতি মিনতি কৰিছিল, কিন্তু মহাদেৱে তেওঁক যাবলৈ দিয়া নাছিল। উপায়ন্তৰ হৈ দেৱীয়ে ৰুদ্ৰ ৰূপ ল'লে। সেই ৰুদ্ৰ ৰূপ দেখি স্তম্ভিত হৈ মহাদেৱে সেই স্থান এৰিব খুজিছিল। তেতিয়াই দেৱীয়ে 10 ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু সেই 10টা ৰূপৰ আলমতেই নীলাচল পাহাৰত 10টা পীঠস্থানৰ জন্ম হ'ল। সেই হ'ল 10 মহাবিদ্যা: ভুৱনেশ্বৰী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ধুমাৱতী, ভৈৰৱী, সুৰসী, তাৰা, কালী, মাতংগী, কমলা। মূল কামাখ্যা মন্দিৰত দেৱীৰ সুৰসী ৰূপত পূজিত হয়। কিন্তু এই অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত ধ্যান ধাৰণাত মগ্ন সাধুসন্তসকলে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলেও কিন্তু নিজৰ পূজা অৰ্চনা অটুট ৰাখে। বিজ্ঞজনৰ পৰা জানক এইকেইটা দিনত মা কামাখ্যাত ধ্যান ধাৰণা কৰিলে বা সাধনা কৰিলে কি পায়, কিয় আহে আচলতে ইমানবোৰ ভক্ত। তেওঁ আহিছে কাশীৰ পৰা, জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাশীৰ পৰা তেওঁ প্ৰতি বছৰে ইয়ালৈ এইকেইটা দিনত কেৱল ধ্যান কৰিবলৈ ইয়ালৈ কিয় আহে। কাশী से हैं ना आप? हर साल आते हैं? जी हाँ, मैं प्रति वर्ष आता हूँ। अम्बुबाची तक रहेंगे यहाँ पर? अम्बुबाची तक मैं रहूँगा, 27 को यहाँ से निकलूँगा। फिर इतने दिनों के लिए आप आए हैं, क्यों आते हैं? अम्बुबाची के समय क्या मिलता है, क्या अलग होता है यहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी आध्यात्मिक साधक हैं जो शक्ति की उपासना करते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में यही एक ऐसी शक्तिपीठ है, इसको सिद्धपीठ भी कहा गया है और ये श्रीपीठ है। तंत्र में भी इसका विशेष योगदान रहा है और आदि अनंत काल से जितने भी उच्च कोटि के साधक आए वो भगवती राजराजेश्वरी की ही कृपा प्राप्त करने के लिए आए। और ये माँ षोडशी हैं, इनका जो स्वरूप है वो 16 वर्षीय है। तो भगवती षोडशी का जो इनको ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में भी जाना जाता है
और भगवती ये चतुष्षष्ट योगिनी के साथ हैं। यहाँ अष्टकोणीय मंदिर है और आदि अनंत काल से है, आज का नहीं है। तो संपूर्ण 52 पीठों में हमारे भारतवर्ष के अंदर और जो भारत से अलग के पीठ हैं उनमें यहीं से ऊर्जा जाती है। संपूर्ण शक्ति पीठों में ऊर्जा जो है वो यहीं से जाती है। ये ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। तो वर्ष में एक बार जो अम्बुबाची होता है, अम्बुबाची का जो पर्व है इस प्रकृति और पुरुष का मिलन का पर्व है। इसमें भगवती 3 दिन जो उनकी अवस्था होती है वो सृष्टि की संरचना की होती है। इस कारण से ऊर्जाओं का इतना वांगमय प्रभाव पड़ता है ब्रह्मांड का, जो हम सभी उपासक और जितने भी साधक हैं वो यहाँ उपस्थित होते हैं और माँ के दरबार में जैसे ही बैठते हैं तो हम इनकी ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो जितनी भी हमारी साधनाएं होती हैं वो सिद्ध होती हैं, पूर्ण होती हैं और मन के अंदर जो भी भाव होता है वो भगवती हमें पूर्ण करती है। सिर्फ आप इन दिनों में ही आते हैं या? मैं यहाँ इस पीठ में 1984 से आ रहा हूँ और मेरे जीवन काल के बहुत सारे अम्बुबाची माई के चरण में ही मुझे बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस वर्ष भी मैं, वैसे 4 नवरात्र भी मैं यहीं रहता हूँ, चारों नवरात्र में यहाँ रहता हूँ। उसके बाद अम्बुबाची में विशेष रूप से रहता हूँ। मेरा जो भी बाहर का कार्यक्रम होता है, जैसे मुझे अभी मॉरिशस जाना था, मैंने वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मैं नहीं गया। मैं एक्चुअली काशी से हूँ और काशी में मेरा एक पीठ है श्रीकुल पीठ। मैं वहाँ का आचार्य पीठाधीश्वर हूँ। श्री श्री 1008 दिवाकर जी महाराज हमको लोग कहते हैं। और मेरी जो संस्था है ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास, उसका इस समय सनातन कल्चर प्रोग्राम चल रहा है मॉरिशस में। तो मेरे जो शिष्य हैं पीठाधीश्वर वो वहाँ उपस्थित हैं। मैं माई की सेवा में यहाँ पड़ा हूँ। अम्बुबासी के दिन इन दिनों में अगर यहाँ सब ध्यान में बैठे हुए हमने देखा, आप भी ध्यान में थे, तो अम्बुबासी के समय ध्यान करने से क्या अलग यहाँ महसूस होता है, क्या मिलता है? हाँ, जो ऊर्जाएं आप निरंतर अपनी उपासना में जिस चीज़ की अनुभूति नहीं कर पाते वो 3 दिन के अंतराल में ही आपको सब कुछ प्यार प्राप्त हो जाता है और शक्ति का साक्षात्कार होता है। इसलिए इस अम्बुबाची पर्व का विशेष महत्व है। आपने बोला 84 से आप यहाँ आ रहे हैं। 84 से पहले आपने कहाँ माँ के बारे में सुना, क्या सुना, क्यों आपको यहाँ आना पड़ा, कौन खींच लाए? मतलब ये भगवती की कृपा है, इनकी प्रेरणा है। ये हमेशा इनके अंदर इतनी बड़ी आकर्षण है कि जो लोग यहाँ आते हैं फिर यहाँ से छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है। बहुत बड़ा ब्रह्मांड का सम्मोहन है भगवती राजराजेश्वरी के चरण कमलों में। तो इसलिए यहाँ जितने भी साधक हैं हम सभी यहाँ उपस्थित होते हैं, माँ का कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं और इनके चरण कमल के सानिध्य में रहकर अपनी उपासना को पूर्णता देते हैं। बाहर चर्चा क्या होते हैं माँ के बारे में? मतलब माँ कामाख्या, आपने कहा 52 पीठ के बारे में बोला, 51 पीठ शक्तिपीठ मूल यही है, तो 51 पीठ आप गए हुए हैं? 51 पीठ में नहीं गया, लेकिन भगवती की कृपा होगी तो अवश्य हो लेंगे। अभी जीवन बहुत है तो माई जब चाहेगी तब कर लेगी। सरसा है, मतलब सरसा कैसे होता है, क्या सोचा होता है? अब ऐसा है कि सबसे बड़ी बात ये होती है हमारे आध्यात्म में कि जो भी साधक और उपासक हैं जो शक्ति की उपासना करते हैं, तो कहा गया है ना कि न मंत्रम न जंत्रम तदपि न च जाने स्तुति महो, न च्वाहानम ध्यानम तदपि न च जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्त्वदनुसरणम क्लेशहरणम। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय जी ने जो दुर्गा सप्तशती लिखी उसमें ये भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ सब कुछ त्याग कर माँ के शरणागत हो गए थे और उन्होंने सभी संपूर्ण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को हटा दिया और कहा कि कुपुत्रो जाए तो क्वचित अपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होता है, माता कुमाता कभी नहीं होती। माँ की जो विह्वलता है, माँ की जो कारुण्य है, उसका हमें निरंतर जो है आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। पुत्र चाहे कितना हो, बुरा हो, लेकिन माँ उसे कभी बुरा नहीं कह सकती। बाहर का चर्चा के विषय में आपने कहा तो इस शक्तिपीठ की चर्चा कोई आम चर्चा नहीं है। इस शक्तिपीठ की चर्चा निरंतर होती रहती है। कोई ऐसा इस विश्व का व्यक्ति नहीं है जो साधना के मार्ग में है और वो ये न जानता हो कि माई के दरबार में सब कुछ प्राप्त होता है। और जिसकी भी साधनाएं पूर्ण होती हैं वो इस कामाख्या शक्तिपीठ में ही होती हैं, क्योंकि कामाख्या जो शब्द है, कामधन आख्या, जो आपकी वासनाओं का समन कर दे, यहाँ आने के बाद जो खटविकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और अहंकार, उनका विनाश हो जाता है, तो आप निर्मल हो जाते हो। तो जब निर्मल अर्थात जब आपकी शून्यावस्था होती है तभी शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ आने के बाद व्यक्ति स्वयं को शून्य में विचरण करने लगता है और माई की कृपा बरसने लगती है।
আচলতে বাহিৰত এইদৰেই মা কামাখ্যাৰ চৰ্চা হয়, য'ত আচলতে মূল শক্তিপীঠলৈ কিয় আহিব লাগে, এইকেইটা দিনত আচলতে ইয়াত অহাটো কিয় প্ৰয়োজন, সেই কথাখিনি বৰ সুন্দৰকৈ তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিছে। দশ মহাবিদ্যাৰ স্থান বুলি ইয়াত কোৱা হয়। দশ মহাবিদ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মাৰ কোনকেইটা দহ ৰূপৰ আচলতে চৰ্চা ইয়াত হয়, দশ মহাবিদ্যাৰ স্থানত কি পূজা হয়, আমি সেয়াও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিতৌ সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগেই মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হয় আৰু সূৰ্যাস্তৰ লগে লগেই মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হয়। আৰু সোমবাৰে সূৰ্যাস্তৰ পিছত যে মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হ'ব, 3 দিনলৈ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ যাব। পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ বন্ধ মন্দিৰৰ দুৱাৰৰ বাহিৰত এইদৰে অগণন ভক্তৰ ভিৰ হ'ব 3টা দিনৰ কাৰণে, আৰু তাৰ বাবেই সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষ। কিন্তু ইতিমধ্যে যিসমূহ আচলতে ভক্ত ইয়ালৈ আহিছে, তেওঁলোকে বাৰু বৰ্তমান কি কৰি সময় পাৰ কৰিছে, ক'ত কিদৰে ধ্যান কৰিছে, আৰু ইয়াত দৰাচলতে দশ মহাবিদ্যাৰ তন্ত্ৰ সাধনাৰ ঠাইৰ উপৰি কি ইয়াত পূজা পাৰ্বণ হ'ব। কাৰণ যিহেতু আমাৰ এক হিন্দু শাস্ত্ৰৰ বা হিন্দু ধৰ্মৰ পৰম্পৰা অনুসৰি মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে বাকী যিসমূহ সৰু বৰ মন্দিৰ সকলোবোৰ বন্ধ হৈ যাব, তেন্তে পূজা ক'ত কিদৰে সম্ভৱ হ'ব। যদি মন্দিৰৰ দুৱাৰেই বন্ধ হৈ যায়, তেন্তে আপুনি পূজা অৰ্চনা ক'ত কৰিব বা কি পূজা অৰ্চনা ইয়াত হ'ব। যদি ইয়ালৈ আহে, মা কামাখ্যাৰ মূল মন্দিৰ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে কাষৰ মন্দিৰসমূহ বন্ধ হৈ যাব, তেন্তে আপুনি পূজা অৰ্চনা ক'ত কৰিব। বিশেষ পূজাৰ স্থান এইকেইটা দিনত ক'ত কি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, সেই বিষয়টো জানিবৰ কাৰণে অকণমান সময় আমাৰ সৈতে থাকক। জোনা আখৰাত নাগা বাবাবিলাকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ঠাইবোৰ লৈ লৈছে, আৰু এইকেইটা দিন তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা ধ্যান ধাৰণা সকলোবোৰ আচলতে এই ঠাইতে কৰিব, আৰু এই ঠাইতে তেওঁলোক আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিব। প্ৰতি বছৰে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহি আছে, আৰু তেওঁলোকে আচলতে বৰ সুন্দৰকৈ বনাব পাৰে এই সময়ছোৱাৰ কাহিনী। অম্বুবাচী সময়ছোৱাত আমি কিয় পালন কৰিব লাগে, কি খাব লাগে, কিয় এইদৰে থাকিব লাগে, বা ইয়ালৈ আহিলে কি হয়, জানিবলৈ চেষ্টা কৰা হওক। আপ কাহা से বাবাজি? हम उज्जैन से हैं माता जी। हर साल आप आते हैं? हर साल आप आते हैं, हर साल आपसे बात होते हैं? हर साल आते हैं, 2005-6 से हम आ रहे हैं। फिक्स डेट तो याद नहीं है, ज़्यादा दिन हो गया तो बाकी उतने दिन से आ रहे हैं। और हम श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा श्री दश महाविद्यापीठ माँ का दर्शन हुआ? त्रिवेणी संगम अद्भुत गौशाला चारों धाम से आए हैं। माँ का दर्शन हुआ? अभी माँ की दर्शन हम लोग नहीं किए हैं, भीड़ है। অম্বুবাচী के बाद मतलब অম্বুবাচী के অম্বুবাচীৰ শেষত তেওঁলোকে আচলতে মাক এইকেইদিন পূজা অৰ্চনা কেৱল কৰিব, আৰু অম্বুবাচীৰ শেষৰ দিনা তেওঁলোকে মাক দৰ্শন দি ইয়াৰ পৰা যাবগৈ। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर कोई अभी दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत यही है कि गर्मी है, गर्मी में थोड़ी व्यवस्था में कमी है। अब इतने महात्मा आ गए हैं, और हमारे महात्मा जितने हैं, हमारे करोड़ों की संख्या से ज़्यादा है हमारे जूना अखाड़ा में महात्मा। अब ये तो 1% नहीं आए हैं। अब यहाँ जगह छोटा है, और माँ की नाम को सुन करके सभी महात्मा दौड़े चले आ रहे हैं माता रानी की। आपने बोला करोड़ों की संख्या में आप लोगों की मतलब जितने नागा बाबा है, तो यहाँ 1% भी नहीं आए हैं। जब आप लोग इकट्ठा होते हैं, कहाँ होते हैं 1 करोड़ एक साथ? हम लोग कुंभ मेला में, महाकुंभ मेला होता है, वहाँ देखते हो ना, नागा ही नागा दिखते हैं। ये धर्म के रक्षक हैं, नागा फौज है, धर्म की रक्षक है। यहाँ क्या मिलते हैं बाबा जी? आप लोग आपने कहा थोड़ा बहुत दिक्कत है, इतना दिक्कत लेके भी माँ के पास क्यों आते हैं, क्या करना चाहिए इन 3 दिनों में?
माँ की गोद से संसार में और कोई सुख है और शांति है क्या? तो वहाँ दुख सुख को नहीं देखा जाता है। तो माँ की गोद है और हम उसके बच्चे हैं, हम तो उसके गोद में गोता लगाने के लिए यहाँ आते हैं। हमारी भारत की संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग अपने जीवन को अर्पण कर चुके हैं, दान दे चुके हैं, और हम लोग पिंड दान कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ जीते हैं, सिर्फ जीवन जीने के लिए आहार करते हैं। जीवन इस शरीर को स्वच्छ रखने और सुंदरता रखने के लिए हम लोग आहार नहीं करते, और हम फलाहारी हैं। अभी देखो भोजन हो गई, अभी हमारी फलाहारी कब बनेगी तब हम आहार करेंगे। माँ की गोद से बढ़ कर के तीनों लोग 14 ब्रह्मांड में ऐसा कोई गोद है कि जिसको शांति मिल जाए? अपनी संस्कृति को गुप्त रखना चाहिए। माँ अगर गुप्त रखेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? अभी सब तो जाहिर करने में लगे हुए हैं। अभी जाहिर करने में लगे हो तो क्या बोल रहे हैं कि सनातन धर्म बीमारी है, सनातन धर्म एक करुणा है। तो वो चीज़ को रखा जाता है ना माँ, इसमें शास्त्र में हमारा लिखा जाता है ना, इस शरीर के अंदर में गुप्त शरीर है ना, फिर उसको कैसे जाहिर करोगे? उसी प्रकार ये गुप्त जगह है। अब आप माँ हो, आपके सामने हम कुछ नहीं बोल सकते, जननी हो। आपने जो बोला वही काफ़ी है हमारे लिए। जितने लोग देख रहे हैं, मतलब आप लोगों की जो बानी है वो सुनने के लिए सब तो इतने दूर दूर से आते हैं। आप लोगों को एक बार सामने से देख ले, यही सब के लिए बहुत काफ़ी है। मतलब वो लोग ऐसे ही आते हैं। तो आपने कुछ बोला, धर्म के बारे में कुछ बोला, हम लोग के लिए, कब दर्शकों के लिए काफ़ी है। हमारे लिए हम तो यही चाहते हैं कि हमारी भारत देश की संस्कृति अमर हो। हमने इसका 365 दिवसीय यज्ञ करके भिक्षा मांगा है। अभी हम 365 दिवसीय यज्ञ करके आए हैं, जिसकी आहुति 2,25,00,000 पड़ी है एक वर्ष में। और हमारी आश्रम ये माँ की गोद है, ये तो पहाड़ी है। उसी प्रकार 3 किलोमीटर अंदर हमारे गांव नहीं है चारों दिशा में। तो ये धर्म को बचाने के लिए, हमारी भारत की संस्कृति को अमर करने के लिए, भारत की कीर्ति को उज्जवल करने के लिए हम लोग अपने प्राण का न्यौछावर कर चुके हैं। और एक दिन ये नागा बाबा ही सामने आएगा, जिस दिन युद्ध होगा। देख लेना, कोई नहीं आएगा। राम मंदिर बना तो सारे नागा ही प्राण खून का धार बहाए। आपने राम मंदिर के बारे में बोला, लेकिन राम मंदिर में जो घोटाला हुआ उसके बारे में मालूम है कि नहीं आपको? के बारे की पहले की बात है, जिस दिन राम मंदिर में युद्ध हुआ था उस दिन की बात बता रहे हैं। कुछ लेके नहीं गया, ये राजनीति का घोटाला है और ये तुम्हारा मीडिया का। कोई कुछ लेके नहीं गए। धर्म का पैसा, हम लोग देखो सन्यासी है, हमारा 1 रुपया अगर आप खाना चाहोगी तो तुम्हारा खानदान 1 लाख रुपया उसका अदा करेगा, आज नहीं तो कल। सन्यासी सर्वनाशी, इसलिए सन्यासी को दान देते हैं। सन्यासी को भोजन जब कराओगे तो उसको दान नहीं दोगे तब तक तुम्हारा भोजन का भी कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं। ये लास्ट पथ है, जीवन का अंत है यही। आप माँ हो, बच्चे को जन्म देते हो, जन्म देने के बाद उंगली पकड़ के चलाते हो, है ना? कितना खुशी की बात है, बड़ी खुशी हुई। आपसे भी। आप मीडिया को गाली मत दीजिए। अब देखो, हम मीडिया को दोषी नहीं लगा रहे हैं। ये हम लोग मानते हैं, अयोध्या का आज जो परिवेश है आप लोगों के लिए ही हुआ है। अयोध्या जो हम लोगों ने फिर से पाया वो आप लोगों की वजह से है, ये ठीक है। लेकिन अभी जो घोटाला हुआ उसके बारे में तो आप मीडिया को दोष दीजिए। उसके बारे में हम लोग नहीं है ना, उसकी जानकारी नहीं है। देखो इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग राजनीति से कोई लेन देन नहीं रखते। हम लोग तो इससे नफरत रखते हैं।
আমি DY365 প্ৰতি বছৰে অম্বুবাচীৰ সময়ত ইয়াত কি পৰিৱেশ হয় কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে সকলোবোৰ দৃশ্য আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ এইবাৰো সেয়ে দুৱাৰ বন্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াত কি পৰিৱেশ হয় সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী 3 দিনৰ কাৰ্যসূচী আমি নিতৌ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মূলতঃ এই সময়ছোৱাত যিসকল সাধু সন্ত ইয়ালৈ আহিছে প্ৰাতঃ স্নান ধ্যান তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য ইয়ালৈ অহাৰ আৰু সেই পৰিৱেশটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে মা কামাখ্যা ধামত 2টা দিন যদিও এতিয়া হাতত আছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু মা কামাখ্যা ধামত এতিয়াও আচলতে সেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সেই 3টা দিনৰ কাৰণে যিসকল ভক্ত ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকৰ স্নান ধ্যান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সেই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দূৰৰ পৰা যিসকল সাধুসন্ত তেওঁলোকে মা কামাখ্যাক কিদৰে পূজা অৰ্চনা কৰে কিমান বা জানে আৰু কিদৰে সাধনা কৰে সেই বিষয়টোকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ